morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. Today in this video, we will do the chapter named Break, Break, Break. Let's go through some word meaning before starting the chapter. Here are the word meanings. The first word is utter. Utter means to speak, bolna. Sailor, any member of ship crew. That is navik. Lad means boy, ladka. Heaven, a small port, chota bandargah. Vanished, to disappeared. That means gayab. Okay. Now students, we will start the chapter named Break, Break, Break. Before starting the chapter, we will read something about the poet. This poem is written by Lord Alfred Tennyson. He was a royal poet. Alfred was born in 1809 and he died in 1892. He is most popular English poet. Tennyson wrote on a variety of topics using rhythm and imagery to create poems which are read and enjoyed to this day. The poem Break Break was believed to have been written in 1834. It expressed Tennyson's grief over the death of his best friend, Arthur Hallam, a fellow poet. The shock of Hallam's death impressed upon Tennyson how priceless youth is, to emphasize this idea in the poem and to express the agony he suffers at the loss of young Hallam. Tennyson presents images of youthful joy, fisherman's son playing with sister, and the sailor lad singing in the bay. So students, ब्रेक 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 जो पोएम है वो एक काइंड ऑफ एलजी है. एलजी होता है किसी की याद में लिखी गई पोएम. मीन्स ये पोएम अल्फ्रेड ने लिखी है उनके बहुत ही डियर फ्रेंड हैलम की डेथ के 2 साल बाद. हैलम अल्फ्रेड के बहुत ही अच्छे दोस्त थे. कुछ ही टाइम में अल्फ्रेड की सिस्टर की शादी हेलन के साथ होने वाली थी, बट उससे पहले अनफॉर्चुनेटली हेलन की डेथ हो गई, जिससे कि अल्फ्रेड बहुत ही दुख में थे और उन्होंने ये पोएम लिखी है. इस पोएम में अल्फ्रेड ने बताया है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है इसमें कोई भी चीज़ हमेशा बनी नहीं रहती है. मीन्स हर चीज़ का अंत निश्चित है और किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है. अगर हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं उसके बावजूद ज़िंदगी के बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से चलती रहती हैं. सो हियर I would like to start the poem. Break, 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 oh the cold grey stone, oh sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. Here the poem is saying, he is speaking to the sea and he is saying that don't make noise, don't disturb me, as your waves cannot bring any changes in the stones. Likewise, you cannot bring any change in my feelings, and stop making noise and stop making coming. So here in the first stanza the poet is saying is speaking to the sea. वो कह रहे हैं
कि जिस तरह से नदी की लहरें आती हैं और पत्थरों से वहाँ पे जो चट्टानें हैं उनसे टकराती हैं, लेकिन टकराने के बाद भी उन चट्टानों में कोई चेंज नहीं आता, वो मोशनलेस हैं, वो बैठे हुए हैं, पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो हिलते नहीं हैं, वो मूव नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते। तो इसी तरह से पोइट कह रहे हैं कि इसी तरह से अभी मेरी इनर फीलिंग है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एकदम शांत हैं और उनके अंदर बहुत सारी थॉट्स अराइज हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं, बट उन थॉट्स को, उन विचारों को, उन बातों को वो अपने शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अंदर से बहुत ही टूटा हुआ, बहुत अकेला, बहुत ही मीन्स लॉस में फील कर रहे हैं, जो कि उनके वर्ड्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Oh well for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the way. Now what happens? Here the poet is saying, oh well is a phrase that is used that he do not want to accept the things going around him, but he has to accept. So it is a phrase that he is accepting the things around him. So आज जहाँ नदी के किनारे वो बैठ करके वो सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पास में एक फिशरमैन का बॉय है जो कि अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है, बहुत सारा शाउट कर रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है, और वहीं पे एक सेलर का बच्चा है जो अपनी नाव पे है और गाना गा रहा है। दैट मीन्स उनको इस फिशरमैन के बॉय को और सेलर लैड को नहीं पता है कि जो ऑथर वहाँ पे बैठे हैं उनको किस तरह की फीलिंग आ रही है, वो दुखी हैं या क्या हैं, उनको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो अपने खुशी में खुश हैं, वो गा रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो यूथ यंग बॉयज़ हैं, तो वो बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं बिना किसी चीज़ को माइंड किए हुए। And the stately ships go on to the heaven under the heel, but oh for the touch of the vanished hand and the sound of voice that is still. और वो क्या बोलते हैं कि जो शिप है वो स्टेटली अपने पोर्ट पे जा रही है, वहाँ जा कर के वो पोर्ट पे खड़ी कर दी जाएगी, वहाँ पे रख दी जाएगी, और वो वैनिश्ड हैंड, दैट मीन्स द हैंड ऑफ हिज फ्रेंड, वो कह रहे हैं कि अब वो टच वो कभी फील नहीं करेंगे, जो कि वैनिश्ड हैंड, यहाँ पे वो वैनिश्ड हैंड कह रहे हैं, बट हैंड वैनिश नहीं है, वैनिश क्या, उनके फ्रेंड ही अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको वो किससे कंपेयर करें, वैनिश्ड हैंड से, कह रहे हैं कि वो हाथ जो उसका टच मैं दोबारा कभी फील नहीं कर पाऊँगा, वो हाथ अब इस दुनिया में नहीं है। एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, और कह रहे वो दैट मीन्स हियर ऑथर इज सेइंग दैट कि उनकी वॉइस तो अब है नहीं क्योंकि उनके फ्रेंड नहीं है, तो वो बोल नहीं सकते, बट फिर भी वो साउंड उनके कानों में गूंजता है, उनको याद आ रही है उनकी, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ क्रैग्स ओ सी, but the tender grace of the day is dead, will never come back to me. तो यहाँ पे बोलते हैं पोएट, क्रैग मीन्स स्टीप और प्रोजेक्टिंग रॉक, तो यहाँ पे ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग, दैट मीन्स जो रॉक्स हैं, नदी की जो लहरें आ रही हैं वो पत्थर के पास आकर के टकरा रही हैं, तो वो नदी से कह रहे हैं कि अब रुक जाओ, ब्रेक दैट मीन्स अलग हो जाओ, टूट जाओ, और ये लहरें मत मीन्स आकर के इस तरह से शोर मत करो। बट द टेंडर ग्रेस मीन्स सॉफ्ट ब्यूटी of a day that is dead, that means a day that is gone, the day is dead, the day cannot be dead, so here the day is gone, that means तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं लास्ट सेकेंड लाइन में कि जो ब्यूटी, जो अच्छे दिन थे वो जा चुके हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे,
will never come back to me. जो अच्छा समय उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड किया वो कभी भी वापस नहीं आएगा. वो इस चीज़ के लिए बहुत ही सॉरोफुल है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेक 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 यहाँ पे कॉन्सोनेंट है जो कि रिपीट हुआ है. तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन. फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन, हियर ऑल्सो इन द लास्ट फोर्थ लाइन इज ऑल्सो एलिट्रेशन. ओ वेल is a kind of sound, so it is ontomyopia. And a day that is dead, day cannot be dead, so here it is personification. So 3 poetic devices used in the poem are alliteration, ontomyopia and personification. Okay, and the in the first 4 lines the rhyming scheme of the poem is A B C D, and in the second stanza it is A B A. On the third stanza A B C D, and in the fourth stanza A B C and B. So in every stanza there is different rhyming scheme. So students, hope you understand the poem well. If you have any problem in understanding the poem, you can directly call me and clear all your doubts. In the next video, we will do the comprehension section, work study and grammar study of the chapter. Thank you.